ہماری حکومت نے پہلی مرتبہ ایک ایسی جامع پالیسی دستاویز تیار کی ہے جس میں ہمارے دور حکومت کے پہلے سال میں شروع کیے گئے تمام فلیگ شپ انیشیٹو کی تفصیلات شائع کی گئی ہیں، جن میں سے چیدہ منصوبوں کی کچھ تفصیل عرض کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، 10 ارب روپے کی لاگت سے وزیر اعلیٰ پنجاب لیپ ٹاپ اسکیم کا آغاز کیا گیا، جس کے تحت اب تک 50,000 طلبوں کو لیپ ٹاپ فراہم کیے گئے ہیں۔ 3.6 ارب روپے کی لاگت سے وزیر اعلیٰ اسکول نیوٹریشن پروگرام کے تحت 3500 سے زائد سرکاری اسکولوں میں 4 لاکھ سے زائد بچوں اور بچیوں کی غذائی نشو و نما کے لیے دودھ کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ تقریباً 4.5 ارب روپے کی لاگت سے ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے ذریعے 55,000 مستحق و باصلاحیت طلبہ کو میرٹ پر انڈر گریجویٹ وظائف دیے گئے۔ 67 کروڑ روپے صرف کر کے لاہور میں آٹزم اسکول کی تعمیر کا آغاز کیا گیا، جہاں 400 سے زائد خصوصی بچوں کو انفرادی تعلیم، تھراپی اور لائف اسکلز کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ 72 ارب روپے کی لاگت سے لاہور میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جو کہ اپنی نوعیت کا پہلا سرکاری کینسر اسپتال ہوگا۔ 8.6 ارب روپے کی لاگت سے سرگودا میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور 8.8 ارب روپے کی لاگت سے لاہور میں جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے۔ 25.2 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب کے 29 ٹرشری کیئر ہاسپٹلز کی ری ویمپنگ کا کام مکمل کیا گیا ہے۔ راولپنڈی، میاں والی اور ملتان، بہاول نگر میں 11 کروڑ روپے کی لاگت سے 2 ایئر ایمبولینسز چلائی گئیں۔ ان کے ذریعے تاحال 167 شدید زخمی مریضوں کی جانیں بچائی جا چکی ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار 7 موٹر ویز پر ایمرجنسی ایمبولینس سروسز متعارف کروائی جا رہی ہیں، جن کے لیے اب تک 44 کروڑ روپے کے فنڈز استعمال کیے جا چکے ہیں۔ 2 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر ڈائلسس پروگرام کے تحت پنجاب میں 20,000 مریضوں کو مفت ڈائلسس کی سہولتیں فراہم کی گئی۔ سی ایم چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے توسط سے 4,300 سے زائد بچوں کی مفت ہارٹ سرجری کی جا چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ٹرانسپلانٹ پروگرام کے تحت گردے، بون میرو، کارنیا ٹرانسپلانٹ کے مفت آپریشنز جاری ہیں، جن سے اب تک سینکڑوں مریض مستفید ہو چکے ہیں۔ 11.1 ارب روپے کی لاگت سے دائمی امراض کی ادویات کی گھر گھر مفت فراہمی کے لیے سی ایم فری میڈیسن پروگرام، جس کے لیے 56 ارب روپے مختص کیے گئے، کے تحت اب تک 2 کروڑ سے زائد مریض مستفید ہو چکے ہیں۔ 39 ارب روپے کی لاگت سے 1026 پی ایچ یوز اور 191 آر ایچ سیز کی ری ویمپنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ 9 ارب روپے کی لاگت سے 2503 بی ایچ یوز کو مریم ہیلتھ کلینک میں تبدیل کیا جا رہا ہے، جس کے لیے فیز 1 میں مریضوں کو دور دراز کے علاقوں میں معیاری طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ 2 ارب روپے صرف کر کے ضلعی ہسپتالوں میں کیتھ لیبز کی تنصیب اور دل کے امراض کی تشخیص اور علاج کے لیے جدید مشینری فراہم کی گئی ہے۔
पंजाब में 1 अरब रुपए की लागत से पॉपुलेशन मैनेजमेंट और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के जरिए नौजवानों में बहबूद आबादी और तौलीदी सेहत से मुतालिक आगाही फैलाई जा रही है। इस जमन में 4.2 अरब रुपए की खतीर रकम से एक और जामे मंसूबे का आगाज किया गया है जो आइंदा माली सालों में जारी रहेगा। 9 अरब रुपए की लागत से किसान कार्ड स्कीम के तहत 10 लाख से ज्यादा किसानों को बीज खाद और ज़राई अद्वियात के लिए 106 अरब रुपए मालियत के बिलासूद कर्जे फराम किए गए। 9.5 अरब रुपए की लागत से वजीर आला ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत छोटे किसानों को सब्सिडी पर अब तक 9,500 ट्रैक्टर फराहम किए गए। सीएम वीट सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गंदम के 5 लाख से जायद काश्तकारों को 5,000 फी एकड़ की बुनियाद पर 11 अरब रुपए से जायद की माली मुआवनत फराहम की। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 1.1 अरब रुपए की लागत से मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और सरगोदा में मॉडल एग्री मॉल्स की स्कीम का आगाज किया गया, जिसके तहत किसान भाइयों के लिए जदीद एग्री इनपुट्स एक ही छत तले फराहम करने की सहूलत मुतारिफ करवाई जा रही है। एग्रो फॉरेस्ट्री के फरोग के लिए 2,950 एकड़ पर शजरकारी मुकम्मल कर ली गई है और इसी ज़मीन में 122 ट्यूबवेल्स भी नस्ब किए जा चुके हैं। सीएम इंटर्नशिप फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट प्रोग्राम के जरिए 1,000 से ज्यादा नौजवानों को 60,000 रुपए माहाना की बुनियाद पर इंटर्नशिप वज़ाइफ दिए गए, जिनका मकसद ज़राअत के शोबे में टेक्नोलॉजी को यकीनी बनाकर इंडस्ट्रियल लिंकेजेस को फरोग देना है। चार इशारिया 4 अरब रुपए की लागत से लाइफ स्टॉक कार्ड स्कीम के जरिए मवेशी पाल किसानों को बिलासूद कर्जे दिए गए। 5 अरब रुपए की लागत से 400 एकड़ डेमो फार्म, हैचरी लैब और रिवॉल्विंग लोन के क्याम से एक्वाकल्चर फॉर श्रिम्प फार्मिंग के मंसूबे को शुरू किया गया। 8.7 अरब रुपए की लागत से शांगा मांगा और दीगर मकामात पर माहौलियाती सियाहत के फरोग के मास्टर प्लानिंग की जा रही है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और क्लाइमेट चेंज के इदारे को मौसर तौर पर फ़ाल बनाने के लिए 10 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए, जिनके ज़रिए जदीद टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, इस्लाहात और माहौलियाती मंसूबों को मुतारिफ करवाया गया है। इन काविशों के बायस पंजाब में आलूदगी की सतह में वाज़े कमी लाई गई। 85.5 अरब रुपए की लागत से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का बेमिसाल मंसूबा शुरू किया गया। सीएम डिस्ट्रिक्ट SDGs प्रोग्राम के तहत 64 अरब रुपए की लागत से 3,488 स्कीमें मुकम्मल की गईं। 17 अरब रुपए की लागत से मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 50 स्कीमों का आगाज किया गया। $5.6 अरब रुपए की लागत में शुरू किए जाने वाले स्मार्ट सेफ सिटीज मंसूबा 19 अजला में जारी है, जिसके जरिए फेशियल रिकग्निशन, ड्रोन और निगरानी के जदीद निज़ाम फाल किए जा रहे हैं। लाहौर के 400 मामी मकामात पर फ्री वाईफाई की सहूलत मुहैया की गई है, जिसके लिए 32 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। अब तक 1.7 करोड़ सार्फिन इस मंसूबे से मुस्तफीद हो चुके हैं। पंजाब की खवातीन को जदीद IT कोर्सेज और रोजगार की फराहमी के जरिए बाख्तियार बनाया जा रहा है। 1 अरब रुपए की लागत से ताहाल 27,000 खवातीन को 6 माह की ट्रेनिंग, वजीफे और टूल किट्स फराहम की गई हैं। हमारी हुकूमत ने
2024-25 में सड़कों की तामीर और बहाली के लिए 1550 स्कीमों का आगाज किया, जिनमें से 1300 से ज्यादा स्कीमों को मुकम्मल करके 12,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों की बहाली और तामीर का अमल भी मुकम्मल किया गया। 133 अरब और 147 अरब रुपए की लागत से रोड्स रिहेबिलिटेशन 2 और रोड्स रेस्टोरेशन प्रोग्राम्स का आगाज किया गया, जिसके जरिए न सिर्फ 7,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों की बहाली को यकीनी बनाया गया, बल्कि 70 से ज्यादा चौराहों की तमीर नौ का काम शुरू किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 40 अरब रुपए के फंड से अपनी नौयत की पहली 527 माहौल दोस्त बसों की खरीदारी का अमल जारी है। इनमें से 27 माहौल दोस्त बसें लाहौर की सड़कों पर रवाना हैं, जो कि न सिर्फ शहरियों की आमदोरफ्त में कारआमद साबित हो रही हैं, बल्कि माहौलियाती आलूदगी में काबू पाने में मददगार हैं। 2.5 अरब रुपए की लागत से मौजूदा साल में तकरीबन 17,000 तलबा को इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स मुहैया की गई। इन सार्फिन में से 5,000 से ज्यादा खवातीन भी शामिल हैं। 3.8 अरब रुपए की लागत से शुरू किए गए गारमेंट सिटी मंसूबे के तहत कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में 2 सिलाई यूनिट्स कायम किए गए, जिनकी सोलराइजेशन भी मुकम्मल कर ली गई है। इस सिलसिले में ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 500 खवातीन अपनी तरबियत मुकम्मल कर ली है, जबकि दीगर बैचेस की तरबियत जारी है। 19 अरब रुपए की लागत से शुरू किए गए आसान कारोबार स्कीम और आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम कार्ड के तहत मजमूई तौर पर 70 अरब रुपए मालियत के बिला सूद कर्जे फराहम किए गए, ताकि सनती तरक्की को फरोग देकर बेरोजगारी का खात्मा किया जाए। 6.1 अरब रुपए की लागत से खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत 45 मंसूबे शुरू किए गए, जिनका मकसद पंजाब भर के खेल के मैदानों को बेहतर बनाना है। मजीद रिहेबिलिटेशन और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के मंसूबे के तहत भी 58 स्कीमों का आगाज किया गया। मुकामी क्रिकेट के टैलेंट को फरोग देने के लिए सियालकोट फैसलाबाद में 2.3 अरब रुपए की लागत से क्रिकेट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया। 12.8 अरब रुपए की लागत से पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के तहत तकरीबन 90 लाख खानदानों के 3.25 करोड़ अफराद की डिजिटल रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है, जिसके तहत उनकी समाजी और इक़्तिसादी मालूमात का डेटा बेस तैयार कर लिया गया है। पंजाब बस्तर प्रोग्राम के तहत 6.6 लाख से ज्यादा सरकारी खिदमात फराहम की गई, जिनमें 60,000 खिदमात घर की दलीज पर दी गई। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत का सियासी विजन एक ऐसे पंजाब की तश्कील है जहां पर हर शहरी को सेहत, तालीम, रोजगार, तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर हो, जहां तरक्की सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद ना हो, बल्कि दही और पसमानदा इलाकों तक भी यकसां पहुंचे। अल्लाह ताला के फज़्ल करम से हमने एक ऐसे निज़ाम हुकूमत की बुनियाद रखी है जो मुआशरे के तमाम तबकात को बराह रास्त रिलीफ मुहैया कर रहा है। इनमें नौजवान, तलबा, किसान, सनतकार, अकलियतें, खुसूसी अफराद, हुनरमंद बच्चियां और बच्चे, मजदूर, मरीज सभी शामिल हैं। यही विजन आइंदा माली साल के बजट की तश्कील में हमारे लिए मशअले राह बना है, जिसके जरिए हमने वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, गुर्बत के खात्मे और रोजगार के यकसा मौक़ों की फराहमी को अपने बजट की हिकमत अमली का मरकज बनाया। जनाब स्पीकर, वजीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में वफाकी सतह पर और वजीर आला पंजाब शरीफ साहबा की दानिशमंदाना मुआशी हिकमत अमली के तहत सूबाई सतह पर की गई
मरबूत काविशों के नतीजे में गुज़िश्ता एक साल के दौरान मुल्क की GDP की शरह नमू में इजाफा हुआ, जो कि अब 2.7% तक पहुंच गई है। महंगाई की शरह 4.7% के साथ पिछली कई दिहाइयों की कम तरीन सतह पर आ गई है, जबकि शरह सूद 22% से कम होकर 11% हो गई है। इन पॉलिसी इकदाम के नतीजे में तरसीलात ज़र बढ़कर 31.2 अरब डॉलर हो चुकी है, जो कि पहुंच गए हैं, जो कि मुस्तहकम होती मुल्क की मईशत का मुंह बोलता सबूत है। जनाब स्पीकर, आपकी वसातत से मेरी ऑपोजिशन के अपने मोहतरम दोस्तों से गुजारिश होगी कि मेरी गुजारिशात पर सब्र तहम्मुल, खुले दिलो दिमाग और मुस्बत सोच के साथ गौर फरमाएं, क्योंकि यह बजट न सिर्फ पंजाब के 12 करोड़ अवाम की उमंगों का तर्जुमान है, बल्कि हुकूमत पंजाब के उन नाकाबिले जिक्र मुआशी और इंतजामी इकदामात का अहाता करता है, जिससे सूबा पंजाब की तरक्की और खुशहाली के सफर में एक नए बाब का इजाफा होगा।